Good morning, dear kids. Today I am taking a new chapter, that is chapter number 13, surface area and volumes. In that we'll be starting today exercise 13.1. In that your first problem is, before going through the problems, let's go with some formulas. What is area and volume of cuboid? So if I want to consider volume, it will be length into breadth into height. And what about the area? It will be surface area. So twice length breadth plus breadth height plus height length. Correct? Okay. And if I have a cube, in that volume will be side cube and your surface area will be 6 side square. Correct? Okay. Let's start with the problem. And the problem says there's a plastic box of 1.5 meter long. So length is given to you 1.5. Breadth is given to you 1.25. And height, depth means height is given to you 65 centimeter. Okay. So your centimeter you can convert into meter by dividing with 100. So that will be 0.65 meter. Correct? So you got three things with you. Now it is said that it is to be open at the top. Ignoring the thickness, find the area of sheet required for making such box. अगर वो टॉप से ओपन है तो हम लोग को क्या लेना पड़ेगा? ये पार्ट ओपन है, सो बाकी सब पार्ट्स तो है. सो वी कैन गो फॉर फोर वॉल एरिया एंड बेस एरिया. करेक्ट? व्हाट इज फोर वॉल एरिया माय डियर किड्स? फोर वॉल में से ले सकते हैं हम लोग 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस बेस एरिया है आपकी लेंथ इंटू ब्रेथ. करेक्ट? यू हैव ऑल द थिंग्स विथ यू. You put it here into your formula and get your value. So that will be your area of sheet required to make a box which is open from the top. Okay. And whatever area you will get, you have to multiply with cost per unit to get with your total cost. Isn't it easy? Yes. Okay, in that I'll say you one more thing. If you want, you can also try a formula for the entire surface area of a cuboid, that is 2 bracket LB plus BH plus HL, and from that you can subtract the top, that is length into breadth. That area you can subtract. There also you will get the same answer. Problem number 2 says the length, breadth, height of a room are 5, 4, 3. Find the cost of whitewashing the walls of the room and ceiling at the rate of 7.50. अब आपको पूरे वॉल्स ऑफ द रूम को करना है और सीलिंग को करना है वाइट वॉश. आपको फ्लोर को नहीं करना है, तो उसमें आपके एरिया ऑफ 4 वॉल्स और एरिया ऑफ सीलिंग आ जाएगा. तो बात तो वही हो गई जैसे हमने पहले प्रॉब्लम में किया. ठीक है? सो एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग. आपके पास लेंथ है 5 मीटर, ब्रेथ है आपके पास 4 मीटर एंड हाइट है आपके पास 3 मीटर्स. करेक्ट? एरिया ऑफ 4 वॉल 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, क्योंकि वो रेक्टेंगल में है तो लेंथ इनटू ब्रेथ. आपके पास हर एक चीज़ है, लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है. जब आप इसमें डालेंगे तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड एरिया. और आपको वाइट वॉश करना है एट द रेट ऑफ 7.50 पर मीटर स्क्वायर. तो आप कॉस्टिंग को मल्टीप्लाई पर मीटर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे टू फाइंड द टोटल कॉस्ट. डिड यू गॉट माई पॉइंट क्लियर? चलो नेक्स्ट लेते हैं. वी हैव द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ अ पेरीमीटर. एक रेक्टेंगुलर हॉल है
उसका जो फ्लोर है उसका पेरीमीटर दिया गया है. द पेरीमीटर इज गिवन टू यू एज 250. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 2 लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू दी हुई है 250. करेक्ट, 250 meters. If the cost of painting the four wall at the rate of 10 per meter square is 15,000. अब आप पूरा पेंट कर रहे हो 4 वॉल को और आपका टोटल कॉस्टिंग आ रहा है 15,000. सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टोटल कॉस्टिंग जो कि है 15,000 और पर यूनिट कॉस्ट है 10 पर मीटर स्क्वायर. जब आप टोटल कॉस्टिंग और पर यूनिट कॉस्ट को आप डिवाइड करेंगे, सो यू विल गेट एरिया ऑफ 4 वॉल. गॉट माई पॉइंट क्लियर? सो फ्रॉम देयर यू विल गेट एरिया ऑफ 4 वॉल. जैसे ही आपके पास एरिया ऑफ 4 वॉल आ गया, यहां से आपके पास कुछ लेंथ और ब्रेथ में आएगा. लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग. सो आई गॉट एरिया ऑफ 4 वॉल्स एज 1500 meter square and I had perimeter that is 2 length plus breadth value as 250. Now I'll put up a formula for area of 4 walls, that is 2 length plus breadth into height. Area of 4 walls I got 1500, so I'll put it here. 2 length plus breadth I have 250, so I'll put it here into height. From there, my dear kids, when you divide 1500 by 250, you will get the value of height. Am I correct with this? In your problem number 4, it says the paint in a certain container is sufficient to paint an equal area of 9.375 meter square. तो आपके कंटेनर में जितना पेंट है वो 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कर सकता है. How many bricks of dimensions this can be painted out of this container? अब आपको ब्रिक्स को करना है, तो ब्रिक्स के डायमेंशंस दिए हुए हैं. लेंथ ऑफ ब्रिक इज 22.5, ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7.5 सेंटीमीटर. और जब आपको कलरिंग पेंटिंग करना होता है तो हम क्या लेते हैं? सरफेस एरिया. एक एक की सरफेस एरिया लेंगे. सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? 2 लेंथ ब्रेथ, breadth height, height length. Correct? Put it all your values in this length, breadth, height and get the value of surface area. Got my point clear? Now you have to find how many bricks. That means you have to get with number of bricks. How you will find number of bricks, my dear kids? Yes? Now दिस कंटेनर में जितना हम लोग का पेंट है वो इतना हम लोग का मीटर स्क्वायर कवर कर सकता है और हम लोग का ईच ब्रिक का एरिया ये आया है. सो व्हेन यू डिवाइड योर टोटल दिस थिंग एरिया पेंटेड बाय अ कंटेनर दैट इज 9.375 मीटर स्क्वायर with the area of each brick, you will get number of bricks. Correct? But be very sure your dimensions here are given in centimeter. So whatever area of brick you will get, that will be centimeter square. But here the paint box का जो हम लोग को दिया हुआ है वो मीटर स्क्वायर में है, तो आपको उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा. How you will convert it? Yes, by multiplying with 10,000. Correct? So your answer will be 93750. So that will be in centimeter square now. So now you can divide. For finding number of bricks, you have to divide the total paint by each brick area. Both are in centimeter. Now you can divide and get with the number of bricks. Let's jump to problem number 5, which says there is a cubical box of edge 10 centimeter. तो एक बॉक्स बना देते हैं. क्यूब है, सब साइड सेम रहेंगे और मेजरमेंट दी हुई है 10 सेंटीमीटर. एंड देयर इज अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स ऑफ 12.5, 10 and 8. So dimensions of another box are
length is 12.5 centimeter, breadth is 10 centimeter, and height is 8 centimeter. So you got both the dimensions of both the boxes. Now your first question is, which box has a greater lateral surface area? Lateral surface area क्या होती है? Lateral का मतलब होता है 4 wall area. ठीक है, तो आप दोनों का 4 wall area निकालेंगे. जब आप क्यूब का 4 wall area निकाल रहे हैं तो 4 wall का फॉर्मूला रहेगा 4 साइड स्क्वायर, क्योंकि आप 4 साइड्स ले रहे हो. जब आप क्यूबॉइड का 4 wall निकालोगे तो फॉर्मूला रहेगा 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट. गॉट माई पॉइंट. और फिर आपको वैल्यूज डाल के चेक करना है हुज लेटरल एरिया इज मोर एंड बाय हाउ मच, मतलब आपको सबट्रैक्ट करके बताना है. गॉट माई पॉइंट क्लियर. योर क्वेश्चन नंबर 2 इज इन दैट विच बॉक्स हैज़ अ स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया. अब TSA फाइंड करना है. तो जब हम क्यूब लेते हैं तो TSA होता है 6 साइड स्क्वायर, क्योंकि 6 साइड्स हैं. जब हम क्यूबॉइड लेते हैं तब TSA होता है टॉइज लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट, हाइट लेंथ. ये फॉर्मूला होता है. तो जब आप अपने डायमेंशंस, अपने वैल्यूज इस फॉर्मूला में डालोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी द आंसर ऑफ TSA, दैट इज टोटल सरफेस एरिया. और फिर आपको कंपेयर करना है कि किसका टोटल सरफेस एरिया बड़ा होगा. ओके. Next, we have problem number 6, which says there's a small indoor greenhouse which is made up of entirely glass including base. They are held together with a tape. It is 30 centimeter long, 25 centimeter wide and 25 centimeter high. तो आपको लेंथ दी हुई है 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर एंड हाइट दिया हुआ है 25 centimeter. And they have asked you what is the area of this glass. क्योंकि ये naturally cuboidal shape में है तो आपको surface area निकालना पड़ेगा. और TSA क्या होगा हमारा? TSA होता है twice, because it's a cuboid, twice length breadth plus breadth height plus height length. जब आप अपनी सब वैल्यूज डालोगे, इधर मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट फाइनल आंसर ऑफ TSA, total surface area. Next question is, how much tape is required for all the 12 edges. अब आप पूरे 12 edges को टेप चिपका रहे हो तो कैसा रहेगा. अब यहाँ पे 12 edges मतलब मैं रेड से पेंट करती हूँ, रेड से कलर कर रही हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे पीछे के, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12. अगर आप ध्यान दोगे तो आपने आगे पीछे के लिया है तो आप एक का पेरीमीटर ले लो, दूसरे का पेरीमीटर ले लो, मतलब आपके पास आ जाएगा 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, वो एक का पेरीमीटर होता है. इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ तो ये आगे पीछे के पेरीमीटर हो जाएंगे. और उसमें आपको 4 आपको अपने ये ऐड करने हैं ब्रेथ. ठीक है, तो प्लस आप ऐड करोगे 1 2 3 4 4B. ठीक है, तो ये अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो दिस विल बी, ये बाहर का 2 मैं यहीं रख रही हूँ, इट विल बी 12 प्लस 2B. करेक्ट. अच्छा, यहाँ पे 4H आएगा, 4 हाइट्स. ओके, सो प्लस 4 हाइट्स ये हो जाएगा आपका. मैं बाहर वाला 2 भी मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 4L प्लस 4B प्लस 4 हाइट्स. गॉट माई पॉइंट क्लियर. अगर आप इसका फॉर्मूला मेकअप करना चाहते हैं तो 4 कॉमन, इनसाइड विल बी L प्लस B प्लस H. सो दैट विल बी वॉट, दैट विल बी द फॉर्मूला फॉर द एंटायर पेरीमीटर ऑफ योर स्ट्रक्चर. गेटिंग माई पॉइंट. तो पेरीमीटर मतलब पूरे को आप टेप लगा रहे हो, तो टेप लगाने के लिए तो आपको पेरीमीटर करना पड़ेगा, एरिया तो नहीं लगेगी. सो पेरीमीटर ऑफ द एंटायर स्ट्रक्चर विल बी 4 ब्रैकेट L प्लस B प्लस H. नाउ यू हैव एवरीथिंग 30 25 25. You have to just put it into this formula and get the value of your tape required for putting together all the 12 edges. Next we have problem number 7, which says Shanti Sweet Stall was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets.
Two sizes of boxes were required. The bigger of dimensions 25-25 and the smaller of dimensions 15-12 by 5. For all the overlaps, 5% of the total surface area is required extra. If the cost of cardboard is rupees 4 for 1000 centimeter square, find the cost of cardboard required for supplying 250 boxes of each kind. अभी देखो, ध्यान दो, एक तो दो बॉक्सेस हैं, तो हम लोग दोनों के डायमेंशंस लिख लेते हैं. एक को बिग बॉक्स नाम लिख लेते हैं, एक को स्मॉल बॉक्स ले लेते हैं. बिग बॉक्स के डायमेंशंस हैं, लेंथ है आपका 25, ब्रेथ है आपका 20 सेंटीमीटर में है और हाइट है आपका 5. ठीक है, बॉक्सेस बना रहे हो तो आपको TSA निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो इसका TSA आप निकाल दो. TSA मतलब फॉर्मूला आपको पता है, 2LB + BH + HL. करेक्ट. सो यू गॉट TSA. अब उसके बाद जो TSA निकलेगा आप उसका एक्स्ट्रा एरिया, अब वहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर ऑल ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया एक्स्ट्रा हम लोग को लगेगी. तो इसका जो आपका TSA आएगा, आई टेल यू व्हाट TSA यू विल गेट 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब इसका आपको 5% एक्स्ट्रा, मतलब 1450 का 5% निकालना पड़ेगा और जो आंसर आएगा वो आपको 1450 में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी एक्स्ट्रा एरिया है एंड एक्स्ट्रा एरिया शुड बी एडेड. ठीक है, तो वहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये आया है एक बॉक्स का, छोटे से बॉक्स का एरिया. ऐसे आपने एक बॉक्स का ये एरिया है, ऐसे आपने 250 बॉक्सेस मंगवाए हैं तो आपको इसको इंटू 250 करना पड़ेगा. गॉट माई पॉइंट क्लियर. तो ये आपका फर्स्ट का बड़े बॉक्स का. अब इसी तरीके से यू हैव टू फाइंड द स्मॉलर बॉक्स. अब स्मॉलर बॉक्स के डायमेंशंस देखेंगे क्या क्या है. स्मॉलर बॉक्स का दिया हुआ है डायमेंशंस. यस, इट इज गिवन. स्मॉलर बॉक्स इज 15-12 by 5. सो आपके पास है 15 लेंथ, ब्रेथ है 12 और हाइट है 5. सो ऑल स्मॉलर बॉक्स का भी सब कुछ दिया हुआ है. उसी तरीके से जैसे अभी हमने फाइंड किया बिगर बॉक्स का, आपको स्मॉलर बॉक्स का TSA फाइंड करना है. जितना आपका TSA आएगा उसका 5% निकालना है और उस 5% जो आंसर आएगा वो उसी में ऐड कर देंगे, क्योंकि वो एक्स्ट्रा है ना, तो एक्स्ट्रा तो आपको एरिया में ऐड ही करना पड़ेगा. सो यू विल गेट योर फाइनल आंसर ऑफ स्मॉलर बॉक्स, एरिया ऑफ स्मॉलर बॉक्स. और ऐसे कितने हैं, तो 250 हैं. सो आपको 250 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू गेट द टोटल एरिया. ठीक है, कितना कार्डबोर्ड शीट पूरा लगेगा हम लोग को स्मॉल बॉक्स बनाने के लिए. तो आपको 250 का, हम लोग के बॉक्सेस हैं तो इंटू 250, एक की एरिया फाइंड करनी है, इंटू 250 करना है, ताकि आपको टोटल एरिया का ऑफ कार्डबोर्ड शीट रिक्वायर्ड टू मेक स्मॉलर बॉक्स, और वहाँ से आपका आएगा स्मॉलर बॉक्स की एरिया. गेटिंग माई पॉइंट क्लियर. Now what they have asked, if the cost of cardboard is rupees 4 for 1000 centimeter square. अब 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए आपको कितना कॉस्टिंग है वो बाद में देखेंगे. अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, जो मैं येलो से मार्क कर रही हूँ, मतलब ये हम लोग को स्मॉलर बॉक्स के कार्डबोर्ड्स की एरिया और यहाँ पे हम लोग की बिगर बॉक्स के कार्डबोर्ड की एरिया, इन दोनों को ऐड कर दो तो टोटल बॉक्सेस की एरिया आपके हाथ में आ जाएगी. टोटल बॉक्सेस की सरफेस एरिया, स्मॉलर बिगर सबकी मिला के. गॉट माई पॉइंट क्लियर. वो आपका आएगा 546,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हम लोग का कॉस्टिंग का प्रोसेस क्या बोल रहा है, हम लोग के लिए कॉस्टिंग क्या है देखते हैं. मैं फ्रेश पेज ले रही हूँ ताकि कॉस्टिंग को थोड़ा क्लियर कर पाऊँ. 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका है 4 रुपीज़ में, तो 546,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कार्डबोर्ड आपको कितने रुपए में पड़ेगा. और ये यूनिटरी मेथड है. यस, आई बात समझ में. तो आप करोगे यूनिटरी मेथड से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आपका टोटल कॉस्टिंग आपके हाथ में है. क्लियर. ओके, नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 8 which says Praveen wanted to make a temporary shelter for her car by making a box like structure with trapulin. Trapulin मतलब आपका एक क्लॉथ है, कैनवास क्लॉथ जैसा, that covers all the 4 sides and the top of the car. Assuming that the stitching margins are very small and therefore negligible, how much trapulin would be required to make the shelter of height 22.5
तो हाइट आपके हाथ में है 2.5 मीटर्स और बेस डायमेंशंस मतलब लेंथ और ब्रेथ, लेंथ है आपका 4 मीटर, ब्रेथ है आपका 3 मीटर। अब कितना कपड़ा लगा है, तो कितने कपड़े के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना कि हम लोग को कहाँ कहाँ कवर करना है। हम लोग को कवर करना है 4 वॉल्स और टॉप पे, करेक्ट। तो 4 वॉल्स की एरिया तो मैंने आपको बता दी है क्योंकि ये क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर रहेगा। सो 4 वॉल एरिया विल बी 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट, और आपको टॉप से भी कवर करना है और टॉप का एरिया रहेगा लेंथ इनटू ब्रेथ। अब आपके पास सब डायमेंशंस हैं, वो इसमें डाल दो एंड यू विल गेट द एंटायर ट्रेपोलिन मटेरियल विच विल बी रिक्वायर्ड। हाउ मच इट विल बी रिक्वायर्ड, सो सरफेस एरिया हमने निकाल दी, 4 वॉल की एरिया और टॉप की एरिया। क्लियर? गॉड ब्लेस।